package. What about the हाँ, highest and lowest medium package? कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अगर किसी अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं देन दे थिंक कि यार अब कॉलेज अच्छा मिल गया है, तो अब सब चीजें अपने आप हो जाएगी। यार दिस इज नॉट द केस ना, मतलब आपको कॉलेज Right. अच्छा मिल गया तो समझो ये नहीं कि आप सब छोड़ दोगे। यू विल स्टार्टिंग से बचपन से बोला जाता है ना, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई अभी 12th कर लो फिर है ना मजे ही मजे हैं, फिर 12th कर लो फिर मजे ही मजे हैं। तो हमारे पेरेंट्स से ये बोलना पड़ेगा कि ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, 10th अच्छे से करो फिर 12th भी आगे सब चीजें अच्छी से करनी पड़ेगी, बिकॉज योर हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे ऑफ। So, hey everyone, this is another episode number 4 on Raw and Real Talk with I am Grad, and we are in this talk we have some special person from MDI Gurgaon, right? So hi Harsh. First of all, thank you for giving me this opportunity to come forward and share my experience. ठीक है, तो first like everybody else, I chose engineering after 10th, and because उस वक्त कुछ ज़्यादा awareness होती नहीं है, Mm-hmm. and if you are a good if you have good grades in academics, तो आप Mm-hmm. engineering लेते थे उस वक्त। Uh-huh. So I did my engineering computer science from NIT Raipur. Mm-hmm. वहाँ पे भी I was overall academically also good and extracurriculars were also fine. Mm-hmm. Then in my third year itself, I decided that I will go for my master's degree and I will go for a master's in business administration itself. Mm-hmm. So basically an MBA. The thing which I had to decide at that point of time was whether I want to do it from India itself or whether I want to go outside of India to pursue my master's. Mm-hmm. So after I got an internship in United Health Group in my third year. Mm-hmm. I did the internship over there and I got a PPO. So what I thought is let's go with the job, take some years of experience, and then decide to explore what will be the life or what will be the stream in which I will want to go ahead in my MBA. Mm-hmm. Basically, I took those 2 years to decide whether to go for an Indian MBA or whether to go outside, whether I want to live in India forever or whether I want to move outside completely. So Yeah. basically सर आपने इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद एक साल जॉब किया एंड यू हैव 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, उसके बाद आप एंटर कर दिए एमबीए के अंदर और आपने आप कैट 2018 अप्लाई किया था एंड 2 साल का जॉब हो गया था मेरा अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 23 मंथ थे। सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि एक मिथ बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि यार जॉब के साथ एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारा उनको टेस्ट मटेरियल या फिर बहुत सारी चीज़ों पे मतलब दे क्रिएट ए मेंटल हेडेक इमेजिनरी वाला, जो कि एग्जैक्टली कुछ है ऐसा खास नहीं है। वन पीस ऑफ एडवाइस, बहुत सारे लोग जो जूनियर या फिर बहुत सारे लोग जिनकी एज अभी कॉलेज के 3rd या 4th ईयर में, दे आर आस्किंग कि सर अभी कर ले एमबीए या जॉब करके करे, क्योंकि आप सर जॉब करने के बाद किया है, तो क्या डिफरेंस, क्योंकि आपके कलीग भी हैं जो एज ए फ्रेशर ज्वाइन किए, और इसका जहां तक मुझे पता है कि एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स और पर्सपेक्टिव अबाउट अप्रोचिंग एनीथिंग, उसमें इम्पैक्ट पड़ता है काफी ज्यादा, करेक्ट? तो वो आप बताइए थोड़ा। So basically, see, मेरे MDI Gurgaon में भी there were people who were freshers. What happened is freshers do not have that corporate wala experience. They do not know how things work in the corporate. So they lack those kind of experiences. And when we used to have discussions in the classrooms and on cases which so the people with work experience always used to have a little bit more inputs than the freshers, because obviously they had some experience to back that up with. Coming to the placement scenario, so mostly consulting and companies and IT companies prefer people with a little, and conglomerates as well, prefer people with a little bit of work experience, like 1 or 2 years of work experience, while sales and marketing and FMCG companies prefer people with a fresher, with no work experience. The reason behind that is because consulting companies are looking for people who have a set mind and like how to approach a problem, how to solve it. While FMCG companies are looking for people which they can mold according to themselves, which can go to your field areas to do sales as well, and without any hesitation. Because once a person has some work experience, he or she might like to stay in the office and not go in the field area. About the another question that like job के साथ करना चाहिए या फ्रेशर ही करना चाहिए, यार इट टोटली डिपेंड्स। अगर आप इंडिया में ही करना चाहते हो तो आप एज अ फ्रेशर भी कर सकते हो या जॉब के बाद भी कर सकते हो।
अगर आपको Right. बाहर से करना है तो आपको मिनिमम 2 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस लगता है। अब बात आती है कि जॉब के साथ आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कैसे होगा। तो यार देखो, मैंने जॉब किया है एंड मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जॉब किया है, तो व्हाट आई हैव सीन इज, अगर आप ढंग से जॉब करते हो ना तो आपका टाइमिंग होता है जॉब का 8.5 से 9 घंटे। बट आपका, अगर आप ढंग से काम कर रहे हो तो 4 5 घंटे से ज्यादा का जॉब नहीं होता। तो आप Right. ढंग से काम करके अपने जॉब के टाइम में पूरा करके यू कैन प्रिपेयर बाय योरसेल्फ। बिकॉज मैंने भी अपने आप को प्रिपेयर किया था, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी कैट के लिए। Right. व्हाट आई डिड इज देयर इज जस्ट कि मैंने 2 महीने 3 महीने पहले आईएमएस का टेस्ट सीरीज ले लिया था। Mm-hmm. तो आई यूज टू गिव टेस्ट एंड मैं फिर थोड़ा मेरा क्या जो भी वीक पोर्शन है या इस पे थोड़ा फोकस करके आई ट्राई टू इम्प्रूव दैट। फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल रीजनिंग पे या क्वांटिटेटिव पे हमारा ऑलरेडी अच्छा ग्रास्प होता है। Mm-hmm. The major thing which people might need to improve is their verbal section. तो Okay. अगर किसी को verbal section अच्छे से prepare करना है तो they might start trying for GMAT verbal। उससे आपका काफी verbal improve हो जाता है। That I have। So ये प्रिपरेशन की बात है। और सर आपका उस जिस ईयर आपने अपीयर किया था, तो व्हाट वाज योर आई कैन से कैट परसेंटाइल, कितना परसेंटाइल आया था आपका? 98.74 था मेरा, फर्स्ट ही अटेम्प्ट था वो। हाँ हाँ। एंड आई डिडंट डू मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा मेहनत करके भी। आई यूज्ड टू डू माय जॉब एज वेल, देन मैं अपना टेस्ट भी देता था, थोड़ा जो अपना टाइम बचता था उसी में मैं प्रिपेयर करता था। राइट। सो 98.74 इट्स योर हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट स्कोर, और उसके बेसिस पे हाँ आपको एमडीआई गुड़गांव। सो सर एक चीज है कि अगर दो ऑप्शन है, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि अगर उनको टॉप नॉच आईएम नहीं मिल रहे हैं, उनको ऐसे आईएम मिल रहे हैं जो बेबी या न्यू कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। और या तो ऑप्शन है कि मैं एमडीआई गुड़गांव चले जाऊं या फिर ऐसे कॉलेजेस के अंदर चले जाऊं, नीति मुंबई के अंदर एंटर कर जाऊं, या उन्होंने इक्विवेलेंटली दोनों चीजें दोनों का इंटरव्यू उन्होंने क्लियर कर लिया और दे हैव ऑप्शन कि किसको ज्वाइन करना है। तो आपके हिसाब से किसको ज्वाइन करना चाहिए? यार आई विल स्टिल से एमडीआई गुड़गांव and नीति मुंबई आर स्टिल वे बेटर and way ahead than the baby and new AIMS. Not because I am from MDI गुड़गांव, but since MDI गुड़गांव नीति मुंबई का यार एलएम बेस है जो अभी काफी स्ट्रॉन्ग है। बट जो न्यू AIMS है उनको थोड़ा एलएम बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड व्हेन यू डू योर एमबीए तो आपको एक चीज रियलाइज होती है कि आपका एलएम बेस बहुत ज्यादा बड़ा एक एसेट होता है आपके लिए, जो आपको बहुत यूज आता है, आपको नेटवर्किंग में हर चीज में काम आएगा। तो इसलिए न्यू AIMS एंड बीबी AIMS को अभी थोड़ा अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने में टाइम लगेगा। ऑन द अदर हैंड एमडीआई गुड़गांव नीति मुंबई का बेस ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है। सो सर अगर किसी को इंटरनेशनल एमबीए करना है तो क्या दिमाग में रखना चाहिए उसको, या फिर इंडिया से एमबीए में? क्योंकि दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है और डिपेंड करता है कि किस कंट्री में एमबीए करने जा रहे हो, तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बदल जाती है कि कोई कंट्री 5 साल का जॉब एक्सपीरियंस मांगती है, कोई 3 का मांगती है, ऐसे बहुत सारा चेंजेस होता है। तो डू यू हैव एनी पर्सपेक्टिव ऑन इट, इंडियन एमबीए वर्सेस इंटरनेशनल एमबीए? So I can quickly remember like two things right now. First is like job work experience. So India में आप वो ना MBA as a fresher भी कर सकते हो, while if you want to do an MBA outside तो MBA जो MBA की डिग्री होती है उसके लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कोई भी अच्छा कॉलेज, कोई भी आईवी लीग कॉलेज अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो 4 से 5 ईयर्स का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस मांगेगा, फर्स्ट थिंग। एंड देन देयर विल बी अ ह्यूज स्टूडेंट लोन और स्टूडेंट डेब्ट ऑन यू बिकॉज उनकी फीस होती है लाइक anything above 1 crore. If your score is too good, then maybe you can crack some scholarship over there. But that's also very difficult, right? Because you are competing with like the entire world. मतलब एक तरीके से प्रेशराइज्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है मेंटली कि एक तो लोन भी ले लिया हमने और अभी सामने जॉब भी लगानी है, और जॉब नहीं लगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर इफ यू वी आर इन यूएस तो वहाँ तो और दिक्कत है कि 6 महीने का टाइम है, नहीं मिला तो आपका वीजा कैंसिल जाओ वापस। कि एमबीए डूइंग फ्रॉम इंडिया इज क्वाइट अफोर्डेबल, इकोनॉमिकल, और कुछ दिक्कत होती है तो आसपास यहाँ पे पहचान लगा काम चलाया जा सकता है। लेकिन इंडिया के बाहर वो पहचान काम करे ना करे तो इससे बहुत सारा कैजुअलिटीज आ जाती है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट? ठीक है। सर एमडीआई गुड़गांव और अगर जैसे आपने बोला कि जो बीबी या न्यू आईएम्स है उसके कंपेरेटिवली एलुमनी बेस के हिसाब से एमडीआई गुड़गांव या जो आईआईटी के अंदर एमबीए हो रहे हैं, एमबीए आईआईटी बॉम्बे में हो रहा है, आईआईटी दिल्ली में हो रहा है, ये सारे के सारे अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट भी अच्छे ही होंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर की जो पढ़ाई के साथ जो इंटर्नशिप्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या अलग इंटर्नशिप्स क्योंकि करना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि आपको आगे चल के क्या करना है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, क्या करना है, वो जानना बहुत जरूरी है। यार देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग होता ही है कि आप पहले से कुछ सोच के आए होते हो अपने एमबीए में कि भाई मुझे मेजर करना है या फाइनेंस में करना है या सेल्स एंड मार्केटिंग में करना है, राइट? तो
फर्स्ट ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट तो मिलता नहीं है, बट यू टेंड टू इंक्लाइन टूवर्ड्स दो सब्जेक्ट्स विच अलाइन टू योर इंटरेस्ट. फॉर राइट एग्जांपल फाइनेंस का जो इंसान होगा, he or she will be inclined towards corporate finance, and these are some of the subjects जो फर्स्ट ईयर में आते हैं. राइट फॉर राइट ऑन द अदर हैंड सेल्स एंड मार्केटिंग वाला जो इंसान होगा वो मार्केटिंग वन, मार्केटिंग टू, इन सब सब्जेक्ट्स की तरफ अलाइन होगा. So what's the process is like when you do your internship, so you will be asked to prepare two sets of, ठीक so है. basically one set of CV, like two sets of CVs में उसमें ये होता है कि आपका जो first CV होता है mainly, that is your major specialization in which you want to go ahead. एंड सेकेंड सेट में ये होता है कि वो थोड़ा जनरल टाइप का होता है, मतलब उसमें ये होता है कि उसमें ये नहीं पता पड़ेगा कि आप किसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो या फिर किसमें इंटरेस्ट ट्राई करते हैं. 80% ऑफ द प्रोसेस में आपको ये स्टार्टिंग में ये चॉइस दिया जाता है कि यू कैन सिट इन अंदर कंपनीज इन विच यू वांट टू. फॉर एग्जांपल आप वो ही कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको आपका डिजायर्ड रोल दे रही है. But if you fall into the last, some people who wants to get placed, तो थोड़ा ये हो जाता है कि now since they want all of the best to get placed, तो फिर वो एंड में जाके थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ये आता है कि you will have to fill every company, and then you might end up in some company which might not give you the role which you are looking for. राइट 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 राइट. मतलब ये भी वही वाला सिस्टम है कि जो मतलब एक तरीके से कॉलेज के अंदर आने के बाद भी वो कंपटीशन उतना ही तेज है कि जो बेस्ट कैंडिडेट है उनको फर्स्ट प्लेसमेंट में बिठाई, पहली कंपनी लग गई, जॉब लग गई, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है. राइट, सेम ही तो है, कुछ अलग थोड़ी है. रेस ही है बेसिकली. और बड़ी अच्छी कंपनी आई है, वेदांता आई हुई है, कोल इंडिया आई हुई है, बिठाओ कोर कंपनी वाले मेटलर्जी माइनिंग वालों को भगाओ, सिविल इलेक्ट्रिकल वालों को भगाओ. अब बचे हुए जो बेचारे, और ये भी आप ही को दिमाग में क्लैरिटी रखना है एकदम. अगर आप बहुत ही ज्यादा नादान और बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरीके से अपना दिमाग लगाना बंद कर देंगे तो देयर आर प्रोबेबिलिटी कि वो अप्रोच नहीं मिल पाएगा. राइट. तो सर एक चीज बहुत ज्यादा ये है कि व्हाई पीपल टेक एमबीए एज ए एस्केप रूट इन करियर, कि कुछ हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा, कि अभी उनकी 5 लाख की जॉब है तो वो 25 लाख की जॉब में कन्वर्ट हो जाएगा. या फिर हम बहुत ज्यादा न्यूज या स्टोरी या यूट्यूब वीडियो में सुनते हैं लोगों के मुंह से कि अरे बस एक बार आया में अहमदाबाद लग जाए, इंदौर लग जाए, लखनऊ लग जाए, जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. एंड देन पीपल यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर एमबीए एंड व्हाट इज रियलिटी ऑफ देम इज कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि हर इंसान की रियलिटी सेम नहीं हो सकती. सो वो आप बताइए कि एग्जैक्टली इट्स लाइफ चेंजिंग और व्हाट इज इट? यार देखो, फ्रेंकली स्पीकिंग है ना, जो मतलब मेरे भी ऐसे कई बैचमेट्स थे, मतलब जो डेड एंड जॉब में फंस जाते हैं या 4 साल से 3-4 साल से जॉब कर रहे हैं बट वेरी लो पैकेज पे जॉब कर रहे हैं. तो दे डू टेक दिस रूट कि भाई एमबीए कर लेते हैं, डेड एंड जॉब से भी निकल जाएंगे, थोड़ा पैकेज भी अच्छा हो जाएगा एंड ऑल. यार बट फ्रेंकली स्पीकिंग व्हाट आई हैव सीन इज कि अल्टीमेटली योर इंटरेस्ट पेज ऑफ, कि अगर आपने डेड एंड जॉब से हटने के लिए भी अगर एमबीए किया है and you are interested in that, then you will do good. But even if then you are not interested in what you are doing, वो चीज काम नहीं आएगी. बिकॉज अगर आपको IIM अहमदाबाद भी मिल जाए या IIM बैंगलोर, कैलकाटा या इंदौर भी मिल जाए, तो यू नो देयर विल बी अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल एंड विच आई कैन से कि मतलब हाँ, दिस आई नो, दिस इज द रियलिटी ऑफ एवरी बी स्कूल. मतलब इंडिया में कोई भी इससे वो नहीं है, कोई बचा हुआ नहीं है. देयर विल बी अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल हु विल नॉट बी हैप्पी विद व्हाट दे गेट इन द एंड. Okay. They will always be on the lookout कि नहीं भाई अब ये लगा है बट सेटिस्फाइड नहीं है, नहीं जल्दी से चेंज करना है, या अच्छा नहीं लगा, जो सोच के आए थे वो तो नहीं हुआ. So that's there. तो अगर एस्केप रूट की तरह हम देखेंगे एमबीए को, दैट इज अगेन इट्स एस्केप रूट, राइट? अगर इफ वी आर लुकिंग कि ये तो लाइफ, हाँ यही तो ट्रैप है कि अल्टीमेटली द पर्पस इज टू डू व्हाट यू लाइक, व्हाट कम्स फ्रॉम यू नेचुरली, और जो आपके इंटरेस्ट में है, रादर देन आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को अगर एस्केप रूट समझ के अंदर घुसेंगे तो वो ही एक तरीके का कहना चाहिए कि ट्रैप बन जाएगा, और फिर आपको फिर एक और चाहिए एस्केप रूट. राइट. कि people do their second MBAs बाहर से, and then MBA स्कूल के इंटरव्यूज में जो फैकल्टीज वगैरह बैठे होते हैं, इंटरव्यूज बैठे होते हैं, they try to judge this thing in the people कि आप एस्केप रूट तो नहीं बना रहे एमबीए को. हाँ, तो मेनली एस्केप रूट नहीं बनाना चाहिए और अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहिए, आप गवर्नमेंट पीपल पर्सन नहीं है,
और इवन यू डोंट वांट टू एंटर इन एक्सेल शीट ऑफ कंपनी, और उनके फाइनेंशियल शीट्स नहीं देखना चाहते, वो सब पसंद नहीं है, आप अपना काम अलग देखना चाहते हैं। सो गो डू एन मल्टीपल इंटर्नशिप्स, सो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा करना क्या है क्या नहीं करना है। ओके, सो सर व्हाट अबाउट जैसे कोविड के टाइम में आपका जो क्लासेस वगैरह था, या फिर इवन इस साल जो बैच अभी एंटर करने वाली है, ठीक है, बिफोर द कोविड चीजें अलग होती है, आफ्टर कोविड अभी चीजें बहुत अलग है, कि अगर जो फर्स्ट बैच अभी एंटर किया है उनके लिए शायद वो वन ऑन वन इंटरेक्ट करना या सीनियर से इंटरेक्ट करना, क्योंकि नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट एनीथिंग। किसी के बारे में कुछ पता नहीं है, नेटवर्किंग है तो पता चलने लगेगा। तो वो चीज कैसे पॉसिबल है, मतलब अभी जो लोग एंटर कर रहे हैं क्या उनको भी उतना इक्वल एक्सपीरियंस मिल रहा है जितना जब फिजिकल क्लासेस चलती थी? यार तो वन थिंग विच आई कैन से इज वेरी विच आई कैन बी वेरी श्योर इज कि रेजिलियंस है अभी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनमें, बट द एक्सपीरियंस हैज गॉन, लाइक एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो गया। बिकॉज जब हम लोग फिजिकल क्लासेस अटेंड करते थे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक मी, तो मेरा ऐसा था कि मेरा नॉट मतलब मेरा मुझे 80-90% आई हैव इंटरेक्टेड विद माई सीनियर्स, मेरे सीनियर्स जानते हैं, आई कैन गो टू देम फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प और प्रॉब्लम। बट आई हैव सीन अभी का जो बैच है, जो 2020-22 बैच है, या जो अभी नया बैच भी मे बी आएगा वो भी, since they don't have this physical kind of experience, they have a limited pool of people with which they interact. अभी आई कैन श्योरली से कि जो अभी के बैच के स्टूडेंट्स हैं, दे माइट नॉट हैव इवन इंटरेक्टेड विद 50% ऑफ देयर बैच ऑन, सीनियर से छोड़िए। तो हमारा तो ऐसा होता था कि हमारे टाइम पे भी, मतलब मैंने 95% लोगों से इंटरेक्ट किया होगा अपने बैच के, एंड सीनियर से भी काफी लोगों से, लाइक 80% प्लस सीनियर से इंटरेक्ट किया होगा। बट अभी के बैच का इंटरेक्शन बहुत कम है इंटरेक्ट। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होने के कारण सब चीज बिगड़ रहा है, एक तरीके से कहना चाहिए। क्योंकि ये मुझे पता है, आई रेड समवेयर ये लाइन, कि जितना लिमिटेड आपका अप्रोच है, जितना लिमिटेड आप, अगर एक शहर में 100 लोग रहते हैं और अगर मैं 20 लोगों से बात करके प्रोडक्ट डिजाइन कर दूंगा, तो मेरा शायद प्रोडक्ट 20 लोग खरीदें या 20 लोगों से कम लोग खरीदें। लेकिन अगर मैं सब लोगों से बात करके प्रोडक्ट डिजाइन करूंगा तो इट्स गारंटी कि 50% मार्केट तो मैं कवर कर सकता हूँ। सेम विद द अप्रोच ऑफ नॉलेज, की ज्यादा लोगों से बात होगी, और ये सब तो अपने ही लोग हैं, अपने ही कॉलेज के लोग हैं, अपने कॉलेज के सीनियर जूनियर प्रोफेसर हैं। ठीक है, ये तो सही है। स्कूल का तो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गिव अवे ही नेटवर्किंग है। मतलब आप जब लोगों से ऐसे चलते फिरते बात करते हुए कुछ सीख लेते हो, डिस्कशंस हो जाते हैं, वो चीज मिसिंग है अभी के ऑनलाइन सिनेरियो में। राइट। एंड सो व्हाट अबाउट प्लेसमेंट? अब जैसे कि 1.5 ईयर की आपकी पढ़ाई वगैरह होती है, उसके बाद आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है? बैठा तो सबको साथ में, बट जनरली स्टार्टिंग में जो कंपनी आती है, किसी भी कॉलेज में जो लाइनअप होता है, वो कंसल्टिंग से स्टार्ट होता है। कंसल्टिंग कंपनी सबसे पहले आती है। तो कंसल्टिंग कंपनी अपने आप ही थोड़े वर्क एक्सपीरियंस वालों को प्रेफर करती है, तो इसलिए थोड़ा ये कह सकते हो कि आप बाय अ वीक और 2 वर्क एक्सपीरियंस वालों का प्लेसमेंट जल्दी स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज कंसल्टिंग कंपनी आना स्टार्ट हो जाती है। राइट। एंड देन जब जैसे ही एफएमसीजीज एंड कॉन्ग्लोमरेट्स और ये सब कंपनीज आना चालू होती हैं, देन फ्रेशर्स आल्सो गेट द चांस। राइट। पैकेज, व्हाट अबाउट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मीडियम पैकेज? Okay. So coming back to the reality of this package thing, so most of the Indian schools, not only private ones, but even the IIMs, I can say, यार उनका पैकेज ऐसा होता है कि देखो, जो एवरेज पैकेज होता है विच दिस शो इज करेक्ट, मतलब एवरेज पैकेज वही होता है, बट देन दे डोंट टेल यू कि यार एवरेज पैकेज में बहुत सारी चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का 42 या 40 प्लस का पैकेज लग रहा है, तो वो आराम से 2-10 वालों को 20 पे 20 प्लस से खींच लेगा, राइट? तो वो होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का होता है कि मतलब आप ऊपर कम लोग होंगे, नीचे भी ऐसा नहीं कि फिर पीछे की साइड भी लोग होंगे, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग ये होता है कि पैकेज में सिर्फ आपका पूरा इनहैंड नहीं आता। जो लोग बहुत ग्लैमरस सोचते हैं कि पैकेज बहुत बड़ा है, ज्यादा है। इनहैंड सैलरी और सीटीसी में डिफरेंट होता है। तो एमडीए गुड़गांव का इनहैंड सैलरी, हाईएस्ट इनहैंड सैलरी, थिंक इनहैंड सैलरी जो मैक्सिमम मिला है, दैट इज 30 और 35 लाख। 35 दैट लाख इज द प्रोडक्ट मैनेजमेंट कंपनी ने दिया है। 35 लाख इज द इनहैंड सैलरी, एंड उनकी जो सीटीसी थी वो अलग है, मतलब वो और भी ज्यादा होगी, लेकिन 45 के आसपास हो गया है। ठीक है। और एवरेज पैकेज एमडीए गुड़गांव का सीटीसी के टर्म्स में? पैकेज बाय यू मीन सीटीसी, राइट? हां, सीटीसी। CTC average CTC was 22 plus this year, 22 plus. It's like I am लखनऊ के जैसा ही है ये तो, मतलब इतना भी अलग नहीं है। I am लखनऊ इंदौर जैसा ही है ये तो। और एकदम लोवेस्ट जिसके एकदम ही हालत खराब है, बहुत बुरी हालत। 10 or 12 LPA like per annum.
ये भी गया है, मतलब बहुत ही बुरी हालत है। तो हाँ, फिर 10-12 तो ये सैलरी कम इतनी इनको इसलिए मिल पाती बिकॉज दे लैक इन स्किल। वही काफी सही चीज होती है। एक तो फर्स्ट थिंग वही कंपनी की, मे बी कंपनी इज नॉट लुकिंग कि हाँ आप में वो कंपेटेबिलिटी नहीं है शायद, या राइट। वो नहीं बैठ पा रहा है। देन मे बी दिस लाइक योर डे, दिस वाज नॉट योर डे, योर दिस वाज नॉट योर मतलब चांस, और योर कंपनी दिस वाज नॉट योर कंपनी, वो भी हो सकता है। देन देयर इज वन थिंग व्हिच आई हैव सीन इन सम पीपल, दे लैक द कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स और द एटीट्यूड व्हिच द कंपनी रिक्वायर। मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अगर किसी अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं, देन दे थिंक कि यार अब कॉलेज अच्छा मिल गया है, तो अब सब चीजें अपने आप हो जाएगी। यार दिस इज नॉट द केस ना, मतलब आपको कॉलेज राइट। अच्छा मिल गया तो समझो ये नहीं कि आप सब छोड़ दोगे। यू विल स्टिल हैव टू वर्क हार्ड, लाइक यू विल हैव टू वर्क हार्डर, बिकॉज अब आपके पास जो पीयर जो कंपटीशन है वो और ज्यादा अच्छा हो गया। काफी ये इंपॉर्टेंट चीज था, मुझे लगता है कि इस पूरे लाइव सेशन का ये वाला जो पार्ट था ये काफी ज्यादा काम का है कि सिर्फ ठप्पे से काम नहीं चलेगा कॉलेज के, आपको भी वहाँ पे Right. काम करना पड़ेगा। नहीं तो बिकॉज इन एनआईटीज आल्सो पीपल आर जॉबलेस एंड पीपल आर हैविंग सैलरी ऑफ 3 लाख रुपीज पर ईयर, और फ्रॉम आईआईटीज आल्सो 6 लाख की भी सैलरी किसी की होती है और कोई जॉबलेस रहता है। इट्स वेरी वेरी नेचुरल। तो ये जो मेंटालिटी होती है कि भाई अब हो गया, अब काम नहीं करना है, इससे तो कभी काम चलने वाला नहीं है, राइट। ये तो काफी अच्छी चीज है, ये आँख खोलने वाली चीज है, मतलब इससे तो मजा आ गया। फ्रैंकली स्पीकिंग यार मुझे पता है, इस चीज पे एक चीज याद आई कि मतलब ये चीजें हमें बड़े बेसिक लेवल से चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज हमें स्टार्टिंग से बचपन से बोला जाता है ना, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई अभी 10th कर लो फिर है ना मजे ही मजे हैं, फिर 12th कर लो फिर मजे ही मजे हैं। तो हमारे पेरेंट्स से ये बोलना पड़ेगा कि ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, 10th अच्छे से करो फिर 12th भी आगे सब चीजें अच्छे से करनी पड़ेगी, बिकॉज यू नो योर हार्डवर्क विल ऑलवेज पे ऑफ। आपका जो भी इनपुट होता है अगर उससे पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा नेगेटिव भी निकलेगा, दोनों चीजों को देख के चलना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि हर एक इंसान ने जो एमबीए कर रखी है, जो आज के डेट में 30 लाख की सैलरी कमा रहा है, दे आर हैविंग वेरी गुड पर्सनल लाइफ एज वेल, राइट। इवन दे हैव मनी, बट देयर आर पॉसिबिलिटीज कि उनकी पर्सनल लाइफ काफी खराब हो या बहुत ज्यादा आइसोलेटेड या लिमिटेड लोगों के साथ। इट इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, बट ये हो रहा है और बहुत सारे लोग इससे भी परेशान है, ये मैंने देखा है। ठीक है, मैंने बात किया है काफी सारे लोगों से, तो मुझे पता चला है कि दिक्कत ही दिक्कत है, सब लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, सो वन पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू एनीबॉडी हु वांट टू प्लान फॉर एमबीए, क्या सोच के उसको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या प्लान करके, या किस माइंडसेट के साथ उसको जाना चाहिए कि हाँ अब एमबीए करने का टाइम आ चुका है, क्या सोचना चाहिए यार इसमें? देखो, फर्स्ट थिंग विच आई कैन से कि मतलब अगर आप अपने आप को सिर्फ कैट के बाद देख पा रहे हो कि भाई हाँ मैंने कैट क्रैक कर लिया, अब मुझे कोई कॉलेज मिल गया, बस इतना देख पा रहे हो, तो यू आर नॉट लाइक दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू गो फॉर एन एमबीए कॉलेज। हम्म। अगर आप उस कॉलेज के बाद भी अपना लाइफ एक बार देख पा रहे हो, मतलब यू कैन यू कैन विजुअलाइज योर लाइफ आफ्टर एमबीए, देन हम्म। इट्स द राइट टाइम फॉर यू टू ज्वाइन एन एमबीए कॉलेज। बिकॉज जस्ट एक कोई चीज वर्कआउट नहीं कर रही है इसलिए मैं दूसरी चीज कर लेता हूँ, दिस इज नॉट द वे टू गो फॉर एनीथिंग, राइट। सो दिस इज वन पीस ऑफ एडवाइस व्हिच आई वांट टू गिव। ठीक है, और व्हाट अबाउट सर कि अभी मतलब व्हाट अबाउट द फीस स्ट्रक्चर, बहुत हाई फाई फीस नहीं है एमबीए गुड़गांव की, राइट। हाँ एक इंसान अगर 2-3 साल जॉब करके पैसे सेव करता है तो उसको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार बात तो सही है, लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा खुद का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आई वर्क फॉर 23 months, आई डेंट टेक अ लोन, मेरे पास कोई लोन नहीं, मेरे पास स्टूडेंट लोन नहीं है। हम्म। बट देन व्हाट आई एम रीडिंग, आई मे बी रॉन्ग अभी भी, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू यू नो, मतलब मैं लोगों से सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ थोड़ा बहुत। व्हाट आई हैव फाउंड आउट इज मे बी कि है ना वो मैंने स्टूडेंट लोन ले लिया होता अगर, मतलब जैसे मेरे माय फादर इज इन अ गवर्नमेंट कंपनी एंड ही वुड हैव गॉटन अ लोन, स्टूडेंट लोन ऑन फॉर माय एजुकेशन फॉर 5% इंटरेस्ट रेट। हम्म। तो अगर मैंने वो लोन ले लिया होता और वो मैंने 8 years ऑफ टाइम में अगर मैंने वो धीरे धीरे करके चुकाया होता, तो शायद मुझे टाइम वैल्यू ऑफ जो मनी है वो अभी जो मैंने पे किया उससे कम देना पड़ता। मतलब मेरे को एट द प्रेजेंट जो मैंने वैल्यू ऑफ मनी पे किया है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अगर मैंने 8 साल में जो वैल्यू ऑफ मनी मैंने पे किया होता उससे। मतलब आपको इंटरेस्ट लगाने के बाद भी उस पैसे की वैल्यू ज्यादा मिलती है। मतलब इसको अगर मैं बहुत साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूं कि आज मेरे पास 10 लाख रुपए है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या 10 लाख रुपए को उठा के सीधा आज मैं एक कार खरीद लूं होंडा सिटी, या 10 लाख रुपए में 1 लाख रुपए से मैं डाउन पेमेंट करूं और 9 लाख रुपए को मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं, हाँ जो म्यूचुअल फंड मुझे महीने के 15% का इंटरेस्ट दे रहा है, और 9 लाख हाँ रुपए का
10% भी मान के चलते हैं तो वो कम से कम, और जो वो 1 लाख रुपीज आ रहा है उसको मंथली डिवाइड करते हैं तो वो 10,000 होता है, करीबन 10,000 रुपए मुझे 9 लाख रुपए में से मंथली इंटरेस्ट मिल जाएगा, और ये जो 9,000 रुपए या 10,000 रुपए इसे मुझे EMI पे डालनी चाहिए, करेक्ट? यही है ना बात, इससे हाँ, मेरे तो बात वही थी। वही बात है, इससे मेरे पैसे भी मेरे पास। हाँ वही, सो यू सी दीज बिजनेस पीपल लाइक व्हाट यू सी, कि आपको क्या लगता है आज के जो अंबानी है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं? दे डोंट यू नो दे डोंट डू देयर बिजनेस completely on their own money, right? They take Right. credits and loans from the and then they do their business. So thank you sir for joining this raw and real talk, and आपका जो LinkedIn ID है वो मैं description में डाल दूंगा. If someone want to make network with you, someone want to connect with you, it's much better for them and for anyone else in future as well. क्योंकि ये वीडियो आने वाले समय तक इंटरनेट पे रहेगी और लोगों को हेल्प करेगी more than for 2 to 3 years. So बहुत ही अच्छी बात है. And thank you for joining this raw and real talk. Please subscribe to my channel if you are new, and ताकि आने वाले सारे के सारे वीडियो आपको मिलते रहे, ठीक है?